Hi guys. So we are now starting with our money and banking paper. MFM, money and financial markets. So, when we talk about MFM, the thing is that इसके अंदर हम लोग cover क्या-क्या करते हैं? हम लोग cover करते हैं financial markets, which are technically your banks, non-bank financial institutions and everything. And of course, money. So it's sort of an extension to what you guys have been doing in your LM curve, except money has a very, very important role to play in the economy, which is the reason why this is sprouted as a complete एक paper for you. इसके अंदर काफी हद तक हमारी theory है, but काफी numericals भी हैं. It's a very, very simple paper. It's very, very practical paper. And it's very interesting. All right. So we are starting with our first unit. First unit जो है हमारा वो है उसमें हमारी 3 readings हैं. The first reading is a B.N. Jensen, which is chapter 1 and chapter 14. Then we have N. Jadhav, which is chapter 2, including 2.3 and annexure 2.1. And we have an RBI report. RBI reports वगैरह जो हैं वो जो हम करेंगे उसमें हम मेन कॉन्सेप्ट्स मेन टॉपिक्स कवर करेंगे. अदरवाइज जो आपकी आरबीआई रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर आपके जो एम्पेरिकल स्टडीज हैं उसके ऊपर आपको यूजुअली क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ठीक है. So for this particular paper, I would suggest that you guys only refer to the videos and the notes. You don't have to read the readings at all. Readings are anyways very, very overlapping in nature. मतलब सेम कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने 3-4 जगह से करा हुआ है. सो इफ यू रीड द रीडिंग्स यू विल गेट वेरी कंफ्यूज कि अच्छा ये मुझे मतलब यू नो हाउ मच इन डिटेल डू आई हैव टू डू एंड एवरीथिंग. So that is the reason I'm asking you stick to the notes and the videos and that is sufficient. All right. First unit, first chapter, very simple. B.N. Jensen का chapter 1. तो money क्या होता है? What is money? Actually, before we even get into the what is money, I also want to point out one more thing. हमारे पास ना इस वाले पेपर में guys open choice होता है. So you're supposed to attempt 5 questions out of the given 8 questions. So हमारा जो last unit है ना जिसके अंदर हमारी बहुत सारी readings हैं उसके अंदर काफी database readings भी हैं. In that unit हम लोग थोड़ी selective study कर सकते हैं. So in this particular paper, whenever I do a topic, I will also tell you whether you have to do it or you can skip it. So just speak, like just do that also with me so that, so for some people who don't have the time or who don't want to do the entire syllabus and are okay to take the risk, they can do selective study. And of course, for the people who really want to work well, study well, ensure they get the maximum marks out of it, they obviously will have to do everything because sometimes the questions can be tricky also, right? So money क्या होता है? You see, money जो है ना, it's a very broad term. Different people जो है, they actually refer to money as different things. So before I actually jump into the syllabus ना, there are few terms that I want to clarify. Wealth and income are not the same thing, बेटा. इनकम होती है जो आप पीरियोडिकली अर्न करते हो. वेल्थ होता है एक पॉइंट इन टाइम पे अगर आपकी लाइफ को स्टॉप कर दें और हम बोलें कि देखो आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितना कुछ आप ओन करते हो माइनस क्या आपकी लाइबिलिटीज है. सो योर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज योर वेल्थ. सो वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. स्टॉक मतलब आप एक बार ही देखते हो कि आपके पास कितना अमाउंट है. लाइक व्हाट इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ यू हैव, what is the amount of assets you own minus the liabilities. And income is a flow concept. Income is the amount of money that you keep on earning every period on a rotation. All right. So our assets can include everything, your car, your house, your investments in the stock market, जो हमने land खरीदी हो, सब कुछ, everything refers to wealth. Income जो होती है, it's a flow of earning, like I said, every month, every week, every year, जो flow में चलती रहती है, right? There's something called currency. जब हम term currency use करते हैं, इसमें coins already include होते हैं. This currency is the paper currency or the coins or what is printed by the central bank. क्योंकि हमारे ये जो मोस्ट ऑफ द राइटर्स हैं ये यूएस इकोनॉमी की बात करते हैं, इसीलिए काफी जगह पे आप देखोगे कि ये लोग सेंट्रल बैंक की जगह फेड यूज करते हैं. इवन इन आवर नोट्स जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें भी मैंने फेड यूज किया है काफी जगह पे.
Some places have changed it to central bank ताकि आप लोग को रेगुलरिटी आ जाए थिंकिंग में, और काफी जगह पे हम फेड यूज कर रहे हैं। बात एक ही है, हमारा सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई होता है वैसे ही यूएस का सेंट्रल बैंक इज फेड। ओके, so a lot of places you will use fed, a lot of places you will use RBI, but the best is to delete all of those words and use the term central bank instead. So जो करेंसी हमारा फेडरल रिजर्व प्रिंट करता है यूएस में, या हमारी कंट्री में जो आरबीआई प्रिंट करती है, उसको हम करेंसी बोलते हैं। दिस इज द मनी विच इज प्रिंटेड बाय द सेंट्रल बैंक। एंड हमारे पास जो दो रिलेटेड टर्म्स होती हैं वो होती हैं मनी सप्लाई एंड मनी स्टॉक। क्योंकि मनी स्टॉक जो है दैट इज एक्चुअली ऑल्सो समथिंग विच इज प्रिंटेड बाय आरबीआई, विच इज प्रिंटेड बाय द सेंट्रल बैंक। सो करेंसी एंड मनी स्टॉक मीन द सेम थिंग। सो करेंसी प्लस कॉइन्स जब हम कर देते हैं तो हम ये जब बोलते हैं कि करेंसी और कॉइन्स जो है वो हमारे आरबीआई ने प्रिंट करे तो उसको हम मनी स्टॉक बोलते हैं। एंड यू नो फॉर अ मोमेंट दिस इज समथिंग आई वांट यू गाइस टू थिंक। सपोज आज हमारे आरबीआई ने 100 रुपीज प्रिंट किए, उस 100 रुपीज में दे प्रिंटेड 10 के 10 नोट्स। तो नाउ यू टू इमेजिन 10 नोट्स, और इकोनॉमी में कोई और पैसा नहीं है, सिर्फ वो 10 नोट्स है। वो 10 नोट्स अगर मैं आज इकोनॉमी रोक दूं और मैं सबको बोलूं अब एम्प्टी योर पॉकेट्स, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स हैं, सब लोग, एवरीबडी, you will find exactly 10 रुपीज के 10 नोट्स इन द इंटायर इकोनॉमी, क्योंकि आरबीआई ने प्रिंट वही किया था, इससे ज्यादा कहां से आएगा। सो अगर हम एक सिंपल इकोनॉमी ले जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक हाउस होल्ड हैं, कंज्यूमर्स हैं, और बैंक्स या नॉन बैंक इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डिपॉजिट्स रखते हैं, तो जो हमारा एक्चुअल फिजिकल पैसा है, जो हमारा एक्चुअल फिजिकल कैश है, जो हमारा मनी स्टॉक है, जो हमारी करेंसी है, वो कभी वो किसी ना किसी के पास होगी इस पॉइंट इन टाइम पे। वो ये है कि हाँ वो एक्सचेंज कर रही है हाथ, सो इफ आई हैव दैट मनी एंड आई पे फॉर इट, यू गेट इट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल फिजिकल मनी, जो अगर आप एक टाइम पे रोक दो इकोनॉमी को तो कहीं ना कहीं किसी की पॉकेट में मिल जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं मनी स्टॉक। सो करेंसी प्लस कॉइन्स एंड मनी स्टॉक आर द सेम थिंग, बट मनी स्टॉक एंड मनी सप्लाई आर नॉट द सेम थिंग। मनी सप्लाई होता है मनी स्टॉक को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हम मल्टीप्लाई प्रोसेस में बहुत अच्छे से बाद में पढ़ेंगे। राइट नाउ व्हाट इज इनफ फॉर यू टू नो इज मनी स्टॉक बेटा और मनी सप्लाई सेम चीज नहीं होती है, दे आर नॉट द सेम थिंग, right? So these terms are okay, make sense, right? So काफी बारी हम in a very loose language काफी सारी चीजें बोलते हैं, जैसे some people may say, oh, I have a lot of money lying in my savings deposit, I have a lot of money in my credit card. Those are very wrong notions from an economics point of view, because when you say you have money lying in the savings deposit is a deposit, it's not money. क्योंकि सेविंग्स डिपॉजिट में आप किसी के पास कुछ लेने जाओ तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे ये मेरा सेविंग्स अकाउंट रखो और मुझे गुड दे दे, नहीं बोलोगे ना, नहीं कर सकते। सो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम उस पैसे को जो आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है वो मनी नहीं है। जो क्रेडिट कार्ड पे आप स्पेंड करते हो वो मनी नहीं है। जब आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हो अपने अकाउंट से निकाल के उसको बैंक को देते हो, वो हमारा मनी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड इटसेल्फ इज नॉट मनी। Having money in the savings account is not saying that we're having, we have money in the savings account. We'll say that we have deposit, right? And different deposits have different liquidities. That's another term. Liquidity refers to the term that how easy can we convert and how cheaply can we convert an asset into a medium of exchange. Let's take an example. आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है जो कि आपने इनहेरिट किया है, उस लैंड की वैल्यू आज के टर्म्स में लेट्स से 10 लाख रुपीस। यू इनहेरिटेड अ लैंड वर्थ रुपीज 10 lakhs। आपको एक कार पसंद आती है जो कि रुपीज 10 lakhs की ही है, आप कार लेने जाते हो, आप उसको लैंड दे के कार ले सकते हो? नहीं, नहीं ले सकते ना। Nobody will accept land as a medium of exchange. What will you do? You will convert this 10 lakhs into money
You will pay this money for the car, and obviously then you will get the car back, right? So अब जब आप लैंड को बेचने गए, you went to sell the land, you spoke to the brokers, you figured out a way to sell the land, then what will happen? You may get the value of the land as 10 lakhs. Somebody may quote lower, somebody may quote higher. So if you do that process, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर को बोलोगे लिसन मुझे ये वाली लैंड बेचनी है, वो बोलेगा देखो अच्छा ऐसा है कि अगर अभी बेचनी है, अभी वी कॉल इट डिस्ट्रेस सेल, नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स अ रियल एस्टेट टर्म। अगर आपको अभी अभी बेचनी है तो मैं आपको ना 8 लाख रुपीज दिलवा सकता हूँ, और अगर आप वेट करना चाहते हो तो रुक जाओ 6-8 महीने, मैं आपको 10 लाख रुपीज भी दिलवा दूंगा। सो द पॉइंट इज दैट हमारा जो लैंड इटसेल्फ है वो लिक्विड नहीं है। उस लैंड को जब हम सेल करेंगे तब हमारे पास मनी आएगा, वो लिक्विड होगा, क्योंकि मनी को मैं इमिडिएटली किसी भी गुड में एक्सचेंज कर सकती हूँ। लेकिन मैं कितने इजीली और कितने कम लॉस के साथ, कितने कम एक्सपेंस के साथ इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ, इस लैंड को कन्वर्ट कर सकती हूँ, उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। सभी लैंड्स की लिक्विडिटी भी सेम नहीं होती, स्टॉक्स की भी नहीं सेम होती, बॉन्ड्स की भी नहीं सेम होती, सबकी अलग अलग होती है। जितने भी आपके पास वेराइटी ऑफ डिफरेंट एसेट्स हैं, एसेट्स की जो लिक्विडिटी होती है वो सब एसेट्स की अलग अलग होती है। द ओनली थिंग वी वांट टू नो हियर इज दैट जो मनी है, मनी इटसेल्फ इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ एन एसेट, एंड उसके अलावा जितने बाकी सभी एसेट्स हैं उनके अंदर हमारी लिक्विडिटी जो है वो कम होती जाती है। और कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके जो बहुत ही इनलिक्विड होते हैं, मतलब जिनको हम लिक्विड पे कन्वर्ट कर ही नहीं सकते फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दे कैन बी द अमाउंट दैट इज बीइंग हेल्ड इन some fixed deposits which cannot be broken and stuff like that, right? But the idea is that we should understand the term liquidity, which I think you guys have understood, right? So, I'm doing the first summary exercise with you. It says that most dictionaries include variations of one or more of the following definitions of money. So, if you open dictionaries and you look for money, you will find one or more of these definitions. Are these correct? Are these the way we define money? When I say we are economists. Dictionary definition is English word or the layman way of saying money. उनका money और हमारा money का definition same है क्या? Let's see. So when they say that money is the portable pieces of metal that may be money, so of course we can use portable pieces of metal to exchange ना. हम portable pieces of metal को दे के उसके against goods and services तो खरीद सकते हैं, which means that this is a source of medium of exchange, which is of course one of the major aspects of money. But this definition is not complete, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने बोला कि portable pieces of metal, which means it is only limiting my definition to coins. What about currency? What about checkable deposits? I have to also explain you guys the difference between checkable deposits, savings deposits, and time deposits. I'm just writing it here so that I can explain to you in a bit. So, जब आपने coins को पे ही limit कर दिया तो ये definition while being correct is not complete. It's a partial definition. आपने बोला सिर्फ coins ही हमारा money है, बाकी नहीं है, which is not correct. Right? Let's look at currency and coins then. So जो currency and coins है उसमें क्या हुआ? करेंसी एंड कॉइन्स में हमारा जो पहले वाले का जो लैक था वो तो हमने इंक्लूड कर लिया कि हमारी करेंसी भी है, कॉइन्स भी हैं, एंड करेंसी एंड कॉइन्स अगेन बोथ कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन फिर भी हमने इसमें चेकेबल डिपॉजिट्स इंक्लूड नहीं करे, which is also why this is also an incomplete definition. And wealth is not money at all. लेमैन टर्म्स में लोग बोल देते हैं उसके पास बहुत पैसे हैं इसलिए वो बहुत वेल्दी है, लेकिन wealth and money are not the same thing at all. Money is what is the liquid ways of medium of exchange. Wealth is the amount of assets a person has. So when we talk about it in economics terms, wealth and money are not the same thing at all. They are very very different things. Coming to checkable deposits, तो हमारे पास कुछ ऐसे बैंक अकाउंट्स होते हैं जिसके अंदर हम पैसा रखते हैं,
लेकिन वो पैसा जीरो या वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फेच करता है, क्योंकि वो चेकेबल डिपॉजिट के फॉर्म में होता है। मतलब मैं उसमें से पैसा बहुत जल्दी रोटेट कर सकती हूँ। आई इट्स एक्चुअली एज गुड एज मनी. So, when we can write checks on it to make the payment, when we can use a card to make the payment against it. So, checkable deposits are those deposits which can be converted to cash at a moment's notice. So, without any waste of, without any lack of time, and without any loss of value, हमारा जितना भी पैसा चेकेबल डिपॉजिट्स में पड़ा है वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए उसको हम चेकेबल डिपॉजिट बोलते हैं. सेविंग्स और या टाइम डिपॉजिट्स जो होते हैं वो भी हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन दे आर एक्चुअली पुट इन द डिपॉजिट फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम. टाइम डिपॉजिट या सेविंग्स डिपॉजिट के अंदर वो पैसा जो है वो इमिजिएटली नहीं होगा. तो व्हेन आई पुट इन माय मनी इन टाइम डिपॉजिट या सेफ्टी डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट, तो माय मनी हैज टू बी इन बैंक फॉर लेट्स से 1 ईयर, 6 मंथ्स, 2 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन मैंने कितने टाइम पीरियड का पॉलिसी लिया है. और उतने टाइम पीरियड तक मैं उस डिपॉजिट को मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती, which is why this is extremely liquid, but this is not as liquid as that. Okay, what are the functions of money? एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ही है, हमें पता है. what are the functions of money? The primary function of money, like we've been talking about, is medium of exchange. जब हमारे पास बेटा मनी नहीं होता था तब हमारे पास बार्टर सिस्टम होता था. बार्टर सिस्टम में क्या होता था? ए के पास मिल्क है, बी के पास वीट है, सी के पास राइस है. ए बोलता है आई वांट टू सेल मिल्क एंड गेट राइस. बी बोलता है आई वांट टू सेल वीट एंड गेट मिल्क. सी बोलता है आई वांट टू सेल राइस एंड गेट वीट. तीनों आपस में ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि ए बोलेगा जब मैं मिल्क सेल कर रहा हूं तो मुझे बदले में राइस चाहिए ना, लेकिन जिसके पास राइस है उसको तो मिल्क चाहिए नहीं, उसको तो वीट चाहिए. और जो जिसको वीट चाहिए वो बोलता है मुझे मिल्क खरीदना है, लेकिन मिल्क खरीदने वाले को तो राइस चाहिए. which means that three of them are unable to exchange with each other. ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी. इसीलिए हम बोलते हैं कि बार्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? that there was a requirement of double coincidence of bonds. जब मैं किसी से ट्रांजैक्ट करती हूँ तो मुझे एग्जैक्टली वो पर्सन चाहिए जो वो बेच रहा है जो मुझे चाहिए, और मैं वो बेच रही हूँ जो उसको खरीदना है. तभी हम आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे, वरना हम बार्टर कैसे करेंगे? और इस चीज की वजह से जो बार्टर की कॉस्ट्स होती है थी उस टाइम पे वो काफी हाई होती थी, क्योंकि अगर आपके पास डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है तो आप एक्सचेंज कर ही नहीं पाओगे. So going to each person, finding that exact person who you have double coincidence of wants with was very time consuming and very painstaking, right? What does the money do? Money eradicated all this by becoming a medium of exchange. जब हमारे पास बार्टर इकोनॉमी होती है तब हमारे को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है टू सर्च फॉर पीपल हु वी शेयर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स विद. तो ये जो सर्च टाइम होता है उसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि जो सर्च टाइम लगा वो इसलिए लगा क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए we need another person who we can exchange goods with. So that is why it's called a transaction cost, because this is a cost that we entail to do that transaction. जो cost हमें bear करनी पड़ती है to do that transaction. जब हम medium of exchange लेके आते हैं, that means we say money is a medium of exchange, then what will happen? A will sell milk, get money. With the money, he will go to C and buy rice. Simple. B will sell wheat, get money. With the money, he'll go to A and buy milk, and so on and so forth. तो मनी जो है वो इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, ये जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इसको बहुत ज्यादा कम कर देता है. एंड दैट इज व्हाई मनी इज अ वेरी गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज which takes care of the problem of double coincidence of wants. जिस इकोनॉमी में मनी यूज होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उस इकोनॉमी को बेटा हम मॉनेटरी इकोनॉमी भी बोलते हैं. मॉनेटरी इकोनॉमी.
मॉनेटरी इकोनॉमी हमारी सबकी है अब तो. मॉनेटरी इकोनॉमी मीन्स सिंपली एन इकोनॉमी विच यूजेस मनी टू डू द ट्रांजैक्शंस. which uses money to do the transactions. So what are the words, what are the terms we have learned here? See, I know that this is all very basic और आप लोग को usually आता भी होगा. The reason I'm stressing upon this here is so that your guys get familiarized with these terms so that later on when we use these terms, you don't get confused. जैसे monetary economy is something that is a term which is used very, very often. But क्या मतलब है? Simply a economy which uses money, which we all do. तो हमारी सबकी economies क्या है? Monetary economies, right? What is the transaction cost? It is the cost which a person entails to do the transaction. जैसे यहाँ पे सर्च टाइम था, कहीं और पे कुछ और होगा, बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती क्या है? वो कॉस्ट जो हमें पे करनी पड़ती है ट्रांजैक्शन को करने के लिए, राइट? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, बार्टर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, रेस्ट वी ऑल नो. द सेकेंड फंक्शन जो मनी फुलफिल करता है वो है दैट मनी इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट. which means what? हमारे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको हम मनी की टर्म्स में वैल्यू करते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज आर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो अगर आप मिल्क लेने जाओगे तो वो मिल्क वाला आपको बोलेगा मिल्क कॉस्ट ₹30 अ लीटर. तो उसने मिल्क की वैल्यू आपको किस में बताई? मनी की टर्म्स में. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग वेट मेजर करते हैं तो वो केजीज में होता है. जब हम टाइम मेजर करते हैं तो वो सेकेंड्स, मिनट्स या आवर्स में होता है. ऐसे ही गुड्स एंड सर्विसेज हम किस में मेजर करते हैं? मनी के टर्म्स में करते हैं. जब हम बार्टर इकोनॉमी में रहते थे, होता था, तब क्या होगा? तब आपका मिल्क का वैल्यू रुपीज के टर्म में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उस टाइम पे तो मनी एग्जिस्ट नहीं करता था. तो इन द बार्टर इकोनॉमी अगर मनी का वैल्यू स्पेसिफाई करना होता था then money would be actually exchanged for, let's say, different goods. There will be more than one price. You will say that I am selling milk. अगर मैं अपना milk in exchange of cow कर रहा हूँ तो I will give 100 liters for one cow. अगर मैं अपना मिल्क व्हीट के अगेंस्ट दे रहा हूँ तो आई विल गिव 1 लीटर फॉर 5 kgs ऑफ व्हीट. अगर मैं अपना मिल्क राइस के अगेंस्ट दे रहा हूँ देन आई विल सेल मिल्क फॉर 2 kgs ऑफ राइस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इट्स सो कंफ्यूजिंग. अगर आपको मिल्क को 5,000 डिफरेंट आइटम्स के अगेंस्ट करना होगा तो फिर यू विल हैव टू फिगर आउट वैल्यू ऑफ ईच आइटम एंड गो फ्रॉम देयर. बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, विच इज वाई व्हाट डिड मनी डू? जब मनी हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट बन गया तो लोगों के लिए सेम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना कितना आसान हो गया. सो नाउ आई डोंट हैव टू थिंक ऑफ मिल्क इन 5 डिफरेंट गुड्स. नाउ आई हैव टू थिंक ऑफ मिल्क इन वन यूनिक प्राइस which is ₹30. And if I want to compare the price of milk over time, I can do that. Last year it was 26, today this year is 30. I want to compare the price of milk with different goods. I can do that also. Price of milk is ₹30, but while the price of butter is ₹100, and so on and so forth. So unit of account has made life much easier for people to compare different goods, for people to compare prices over time, for people to value GDP, for people to understand how their GDP is changing, how you have to compare GDP with another country. Because not only goods and services are measured in money, goods and services का value is always in money. तो आप बहुत सारे comparisons कर सकते हो जो आप पहले नहीं कर सकते थे. So monetary economy has a great advantage in terms of unit of account. The third is store of value. Money also acts as a store of value. So money can be stored, like we can store the purchasing power in money, and you know uh, we can then use the purchasing power to purchase anything, house, car, anything tomorrow. So it's a store of value. So we can actually store value to use that value later. We don't have to use that value today, but we can use that value later. Like for example, अगर money नहीं होता और मुझे लगता है कि यार मैं आज तो कमा रही हूँ, कल पता नहीं यार कमाऊं कि ना कमाऊं. If I think that कल अगर मैं if I'm not able to earn, then I will have to use my today's money tomorrow. What do I do? Money तो है नहीं. तो if I'm, let's say, a wheat producer, तो मैं wheat को स्टोर करूंगी अगले साल के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगले साल शायद मैं wheat प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगी. प्रॉब्लम क्या है? wheat तो पेरिश हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो मुझे जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो तो मिलेगी नहीं.
चलो मैं किसी ऐसी चीज की प्रोड्यूसर हूँ जो कि खराब नहीं होता। आई लेट्स से प्रोड्यूस कार्स, और मैंने बोला कि यार आज मैंने ना 10 गाड़ियां बनाई हैं, आई वॉन्ट टू सेव 5 कार्स फॉर टुमारो, क्योंकि मैं कल नहीं बना पाऊँ। तो कल के लिए अगर मैंने 5 कार्स स्टोर कर ली, देन इट विल बी सो एक्सपेंसिव फॉर मी टू स्टोर देम। आई विल हैव टू फिगर आउट अ वेयर हाउस जहाँ पे वो खराब ना हो। सो स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए जो मुझे, मतलब द अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट आई हैव टू टेक विल बी वेरी हाई। So इसी रीजन की वजह से any other means of store of value other than money is inefficient. Having said that, money के अलावा भी बहुत सारे stores of value होते हैं which are more efficient than money, like stocks, land, bonds, mutual funds, etc. In fact, ये जो सारे sources हैं, there are better store of value of money rather than money, because these pay interest. And like we already know, money pays no interest. If you keep money as money, there is no interest whatsoever. ये वाले जो assets है, ये interest pay करते हैं. इसीलिए they are actually better sources of store of value than even money is. Last but not the least, the the advantage of money is it's a standard of deferred payment. Deferred payment. मतलब अगर मुझे किसी को कल पे करना है, यू ओ मनी टू योर फ्रेंड एंड यू हैव टू पे दैट मनी टुमारो, देन व्हाट विल यू डू? you will you will actually specify that value in terms of money. So for example, I can tell my friend, listen, you owe me $500 for tomorrow, or you owe me 1,000 rupees that you have to pay me after a month. तो क्लियर है ना कि कितना अमाउंट है। अब अगर मनी नहीं होगा तो क्या करेंगे? मनी नहीं होगा तो मुझे ये प्लान करना पड़ेगा कि 1 महीने बाद मेरा फ्रेंड मुझे पे करने के लिए कोई गुड देगा। अब वो गुड वो होना चाहिए जो वो देना चाहते हैं और मैं लेना चाहती हूँ। अगेन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स आ गया, which is why money acts as a good standard of deferred payment. So all of these four functions of course are provided by money, and monetary economics में ये चारों functions होने की वजह से money becomes an excellent source of medium of exchange, store of value, unit of account, and standard of deferred payment. But to think of it, money आया कहाँ से? Where is the origin of money? Where did money come from? You know, आपको याद होगा, before I get into the actual history, but आपको याद होगा, मतलब you must have seen those movies and all ना, pre money times की, जब राजा महाराजा होते थे उनके पास सोने के सिक्के, सिल्वर के सिक्के होते थे, कॉपर के सिक्के होते थे, to define different values that they had to pay. They used to transact in gold coins, silver coins, copper coins, other metal coins to actually transact with each other. But उनके पास भी सिक्के कहीं से तो आए होंगे ना, उससे पहले ओरिजिन ऑफ मनी क्या था? सो एक्चुअली ओरिजिन ऑफ मनी जो है ना, वो काफी ज्यादा अननोन है, एंड वी एक्चुअली डोंट इवन केयर अबाउट द ओरिजिन ऑफ मनी। कोई बोलता है यूरोप में हुआ था, some people say it was done by Rome. It's not really important. So that is why we're going to not talk about this any further. I wanted to ask, think about it. Would credit cards, we although spoke about credit cards, would credit cards be counted as money? Would credit cards be counted as money? Well, no. You see, when you actually do a credit card, or take a credit card and give that card against a good and a service, then the plastic itself has no value. It's your name, and it's the promise of a payment by you which has value. So when you promise to pay, it's just delaying the amount of payment that you're doing. So instead of paying today, you're paying later to your bank. But pay to aap karoge na. So it's actually like, you will pay from your own account to the credit card, or you will deposit cash against the credit card, or you will make a payment somehow. So it is that act which will transact the money. So credit card is a medium of payment, yes, but credit card is just taking a loan against the future payments. So it's not the plastic of the credit card which holds any value. It's your promise to pay which holds value. So it actually works like a deferred payment. So you just like, got a good today, but you're paying for it later. So credit cards are not money. They are not money, right?
What are the types of money? What are the types of money? So हमारे पास ट्रेडिशनली स्पीकिंग दो तरह की मनी होती है. We have something called commodity money, and the other one is called fiat money. So commodity money is the money which has been used earlier, जो राजा महाराजा यूज करते थे. तो जब वो एक गोल्ड कॉइन यूज करते थे, उसकी वैल्यू used to be the amount of gold used in the gold coin. So hypothetically, let's suppose one gold coin is for 1 gram, and they feel the value of this 1 gram of gold is rupees 500. Then they will make that 1 gram gold, and the 1 gram gold is rupees 500 worth. Is rupees 500 worth. So उसकी जो intrinsic value है, जो gold की अपनी value है, वही value के वो से वो exchange होगा. I know that right now it does not make as much sense, but it will when I explain fiat money to you. Fiat monies are your notes, currency notes. So if you look at your currency note, उसके ऊपर लिखा होता है, like take out a currency note, pause the video, take out that currency note and look at the video or look at the note. It will say that I promise to pay the bearer of this note rupees X, depending on what note have you taken out. So 10 rupees note will carry rupees 10, 50, 50, and so on and so forth. So it's a promise by the RBI to pay you, which is how that money is accepted as money. So tomorrow if you cut out a piece of paper and उसके ऊपर आप लिख दोगे ना, I promise to pay this person X amount of money, तो वो नहीं यूज होगा, क्योंकि उसके अंदर RBI का प्रॉमिस नहीं है. इस नोट में क्योंकि RBI का प्रॉमिस है, इसीलिए वो एज अ मनी यूज होता है. बट उस नोट की इसलिए वैल्यू है क्योंकि RBI प्रॉमिस कर रहा है. कल को RBI शट हो गया, बंद हो गया जी, हो नहीं सकता, बट हो गया, तब उस नोट की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज देन इट्स अ पेपर. पेपर हैज नो वैल्यू. लेकिन अगर आपका यही गोल्ड कॉइन है विच इज योर कमोडिटी मनी, तो गोल्ड कॉइन की गोल्ड की वैल्यू तो रहेगी ना. It does not carry value because somebody else has promised to pay some money against it. No, that gold coin carries value because the gold is worth that much in the gold coin. You understand? So commodity money is the money which is backed by a physical commodity, जिसकी उतनी वैल्यू होती है जितनी उस कॉइन की उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है. कमोडिटी मनी को हम फुल बॉडीड मनी भी बोलते हैं. फुल बॉडीड मनी. फुल बॉडीड मनी मतलब उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली उसकी मॉनेटरी वैल्यू के इक्वल है. विच मीन्स अगर कल को किसी रीजन से हमारा गोल्ड का वैल्यू 600 हो जाता है, तो उस 1 ग्राम की कॉइन की कॉस्ट भी 600 हो जाएगी. राइट. सो जो फिएट मनी होता है, दैट्स अ representative मनी. representative money. Okay, representative money. And there is something called representative full bodied money. तो representative full bodied money जो है वो commodity money के बाद आया था. तो सबसे पहले अगर हम रूलर्स के टाइम की बात लें तो हमारे पास commodity money होता था, gold coins and all that. But after a point in time, people realized यार कि gold coins carry करना was so difficult, and there was high, risk of theft. किसी को पेमेंट करनी है, गोल्ड कॉइन्स कोई लेके जा रहा है अपने घोड़े पे, किसी और ने आके लूट लिया, तो ऑटोमेटिकली इट वाज वेरी रिस्की, इट कैरिड अ लॉट ऑफ रिस्क. तो लोगों ने क्या किया, अपना रिस्क बचाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी पे आ गए. तो वो गए एक ज्वेलर के पास, उस टाइम पे उसको साहूकार बोलते थे शायद. उसको उन्होंने अपना पोटली दिया ऑफ द गोल्ड कॉइन्स, और उनको उसको वो उस बंदे ने दे दिया दैट आई ओ दिस पर्सन दीज मैनी गोल्ड कॉइन्स करके लिख के दे दिया. जब उसने वो लिख के दिया ना, तो उस पेपर की जो वैल्यू हो गई वो आज हमारी करेंसी के जैसी हो गई. So it became representative of a full bodied man. So that paper was your claim to those gold coins that is sitting with the sahukar, right? So आप गए, आपने बोला कि ठीक है ये मुझे अब किसी और को देना है, तो मैं गोल्ड कॉइन्स को कैरी करने की जगह ये पेपर कैरी करूंगा. पेपर छोटा होता है, कहीं पे भी आप रख सकते हो, किसी को दिखेगा नहीं, थेफ्ट के चांसेस कम हो जाएंगे. गोल्ड कॉइन्स जब आप कैरी करते थे, जब लोग कैरी करते थे तो वो दिखते थे ना, दे यूज्ड टू बी इन द पोटली व्हिच पीपल कुड सी फ्रॉम फार अवे. सो ऑफ कोर्स थेफ्ट वाज इजी.
But with a paper, because it's lying in somebody's pocket, तो वो दिखेगा नहीं, theft would become difficult. So representative full-bodied money was the claim to the full-bodied money which was there earlier. Full-bodied money मतलब commodity. तो जब लोगों ने representative full-body money करा, तो उनको समझ में आया कि यार क्लेम करने तो कोई आया ही नहीं. एक ने दूसरे को पेमेंट करनी थी, उसने वो पेपर पकड़ा दिया. दूसरे ने तीस को पेमेंट करनी थी, उसने वो पेपर आगे पकड़ा दिया. तीसरे ने चौथे को वो पेपर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So eventually, that this person who was issuing this paper, he realized that nobody actually comes to ask me for money. किसी ने बोला ही नहीं कि उसको चाहिए. अब किसी ने अगर बोला ही नहीं उसको चाहिए, तो फिर क्या होगा? तो उसने बोला यार जरूरत ही क्या है, मैं तो representative money पे ही मूव कर जाता हूँ ना. Let me just do this. That क्योंकि मुझसे कोई लेता नहीं है ये वाला गोल्ड, तो जैसे आज का जो हमारा सिस्टम है वो ये वाला है. तो हमारे बैंक्स क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक ने लिखा किसी को कि भाई हाँ ठीक है, दिस नोट represents a claim to from payment to me from me, but they know nobody comes. So what they have done is, उनके पास हर एक सेंट्रल बैंक के पास हर एक कंट्री में एक वॉल्ट होता है, एक वॉल्ट होता है. तो ट्रेडिशनली जितना हमारा इस वॉल्ट के अंदर वैल्यू होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वैल्यू होगा मेटल का एंड सब चीजों का, उतना ही पैसा वो प्रिंट कर सकती थी, उतना ही मनी प्रिंट हो सकता था, उतना ही करेंसी प्रिंट हो सकता था. ट्रेडिशनली ये था विच वॉज योर रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी टाइम्स. तो अगर आरबीआई को 100 रुपए प्रिंट करने हैं, तो उसके पास 100 रुपए का गोल्ड वॉल्ट में होना चाहिए, तभी वो प्रिंट करेगी. ताकि अगर कल को कोई उस 100 रुपए के अगेंस्ट गोल्ड मांगने आ जाए, तो आरबीआई के पास इतना पैसा हो, इतना गोल्ड हो कि वो अपना गोल्ड निकाल के उसको दे दे. दैट वॉज द इंटेंशन. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इकोनॉमीज अंडरस्टूड कि कोई आता तो है नहीं, because people start having the faith in the government, in the faith in the central bank, then nobody comes. When nobody comes, then they said that we are going to issue money, we are going to print money without having that metal. बट टू ट्रैक कि वो कितना पैसा प्रिंट कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, एक पीस ऑफ पेपर यहाँ पे डालना शुरू कर दिया फॉर एवरी रूपी प्रिंटेड हियर. सो इट्स लाइक दे क्रिएटेड IOUs. So it's this piece of paper says I owe the person, or I owe, or this paper is worth, let's say they say this paper is worth 1,000 rupees. उन्होंने एक पेपर डाला वॉल्ट में और 1,000 रुपीज का नोट प्रिंट कर दिया. 2,000 डाले उसमें और 2,000 नोट का नोट प्रिंट कर दिया. 2,000 का नोट मतलब 2,000 वर्थ ऑफ नोट प्रिंट कर दिए. एंड वैसे भी अब तो 2,000 ही चलता है, 1,000 है नहीं, बट हाउ एवर, तो उन्होंने 2,000 का नोट प्रिंट कर दिया. तो ये मेरे पास सर्कुलेशन में आ गया, आपके पास, मेरे पास, सबके पास, ये उनके वॉल्ट में चला गया. ताकि कभी भी अगर हमें समझना हो कि हमारी करेंसी कितनी है जो सर्कुलेशन में है, तो वो वॉल्ट खोल के IOUs निकालेगा, पेपर पता लग जाएगा कितना है, और उससे पता लग जाएगा. But the idea is that while our currency says that the RBI owes this person this much money, RBI actually does not have that much gold. It is just printed money by issuing this one piece of paper and putting it in their wallet. And इसीलिए जो हमारी मनी आज सर्कुलेशन में है, उसको हम फिएट मनी बोलते हैं. इस मनी के पीछे कोई गोल्ड, कोई मेटल, कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट इट्स सिंपली एन अनबैक्ड पेपर मनी. अनबैक्ड मनी, इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, इट इज जस्ट एन अनबैक्ड मनी. हमारे पास जैसे करेंसी होती है, वैसे ही हमारे पास टोकन कॉइन्स भी होते हैं. जो टोकन कॉइन्स होते हैं वो भी हमारी सर्कुलेशन में है, जो मनी है वो भी हमारी सर्कुलेशन में है, राइट. This brings me to a very interesting example. जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तो जो प्रिजनर्स थे वॉर के, they were put in different camps. So prisoners of war, they were in a camp. उस कैंप में पैसे नहीं होते थे, क्योंकि they were prisoners of war. It's like एक साइड ने दूसरी साइड के लोगों को जो डिफीट करती गई, उसको प्रिजनर्स लेती गई. जेल में तो रखेंगे नहीं इतने सारे लोगों को, तो उन्होंने कैंप बनाया हुआ था. उस कैंप में पैसा नहीं होता था. Food and everything used to be given, and everybody would get a certain rationed amount of things. सब कुछ मिलता था लेकिन राशन में, जैसे हर एक जने को, जैसे जैसे each person will get 2 breads, 1 razor, 1 this, 1 that, and including cigarettes. Okay. And so prisoners of war ने क्या किया, उनको they used to want to have किसी को ज्यादा चॉकलेट्स खानी है, किसी को ज्यादा कुकीज चाहिए, किसी को ज्यादा कुछ और चाहिए,
तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड यूजिंग सिगरेट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उन्होंने हर एक चीज का जो वैल्यू है, जैसे हम आज रुपीस के टर्म्स में लेते हैं, उन्होंने सिगरेट्स के टर्म्स में ले लिया। So they would say one, if you want an extra, let's say donut, so it's valued at 2 cigarettes, and so on and so forth. So then this is then acting as a medium of exchange for everything. But the question I want to ask you is, I want you guys to think about is, can this also fulfill all other purposes of money, all other functions of money? Let's see. It is a medium of exchange, yes, effective medium of exchange. Can it be a, हमारे जो वो थे functions of money, वो क्या क्या थे? Unit of account, store of value, and standard of deferred payment. So can it be a unit of account? Yes. Everybody in the camp would just deploy the same technique, that everything will be exchanged for cigarettes and everything will be priced in terms of cigarettes. So it can be a unit of account within that community. Can it be a store of value? Yes. अगर मुझे आज नहीं कंज्यूम करना कुछ और एक्स्ट्रा, तो मैं अपनी सिगरेट्स को रखूंगी ताकि मैं कल को उसको एक्सचेंज कर पाऊं किसी और चीज के साथ. इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. कैन इट बी अ स्टोर ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स? डेफिनेटली. अगर किसी एक प्रिजनर ने दूसरे की मदद करी और दूसरे ने बोला, यार लिसन, आई एम हेल्पिंग यू आउट बट आई वांट टू सिगरेट्स, तो जैसे ठीक है, मेरे पास कल आएंगे, मैं कल दे दूंगा मेरे राशन में से. इट कैन बी अ स्टोर ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स एज वेल. So yes, the idea of a medium of exchange, or the idea of money, is that we need just simply one instrument which can fulfill all the functions of money, all the functions of money. Along with this, we have some physical properties of money, which are, so money has portability. Money can be taken from one place to another. It can be ported from one place to another. We just put it in our wallets and take it. Very simple. Money is divisible by nature. I have a 2000 rupees notes. I want to convert it to 500s. I will easily do that. I want to convert it to hundreds, 200s. It's easily doable. Money is durable. It can last you years and years and years. And of course, it has a value written on top, which is a recognizable value. When people see a note, they should easily be able to figure ये कितने रुपए का नोट है, और बहुत easy होना चाहिए. And which, all of these properties that we have discussed so far are what all makes money. Now, the next thing to do is the evolution of banks.